And now we will going to start the practice set 6.1, and in question number 6 we will going to start the question number 8. The question number 8 is nothing but sec theta plus tan theta equals to cos theta upon 1 minus tan theta. We have to prove that. Okay students, as you know, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बता चुका था कि आपको जब तक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला बाय हार्ट नहीं होगा तब तक आपको लेक्चर्स को अंडरस्टैंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी डेफिनेटली. सो माय डियर स्टूडेंट, प्लीज आप फार्मूला को बाय हार्ट करेंगे तब आपको ये सम फटाफट समझ में आएगा. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 8. The question number 8 is sec theta plus tan theta equals to cos theta upon 1 minus sin theta. एज यूजुअल मोस्टली अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू लेकर 7 तक जितने भी सम सॉल्व किए उसमें लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व किया और राइट हैंड साइड के बराबर लाया था. ओके, नाउ इस पर थोड़ा डिफरेंट करने का मन कर रहा है. ऐसा करते इस बार है ना, राइट हैंड साइड को लेके सॉल्व करते और उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लाने का ट्राई करते. ठीक है स्टूडेंट, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लाने का ट्राई करेंगे. देखते कि LHS टू RHS तो बहुत बार हुआ, बट RHS टू LHS होता है कि नहीं. जस्ट ट्राई. ओके स्टूडेंट, now I'm going to start with my RHS. RHS is nothing but cos theta upon 1 minus sin theta. So cos theta upon 1 minus sin theta is given. So from this we have to solve. We have to prove that our aim, given thing is that, and our aim is this one, sec theta plus tan theta. So as you know, जैसे कि मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था 1 minus sin theta दिया हुआ है और डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में ओनली cos थीटा. तो कोई चॉइस भी क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में. ऐसी सिचुएशन में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इमीडिएटली कॉन्जुगेट पेयर ले लीजिए. 1 माइनस साइन थीटा का कॉन्जुगेट पेयर क्या होता है? 1 प्लस साइन थीटा. सो 1 माइनस साइन थीटा, द हैविंग द कॉन्जुगेट पेयर इज नथिंग बट 1 प्लस साइन थीटा. सो आई एम गोइंग टू राइट cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, and whatever the conjugate pair of 1 minus sin theta is 1 plus sin theta. So I am going to multiply and divide by 1 plus sin theta. Okay, we can do like that, don't worry. 1 plus sin theta से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 plus sin theta से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे. मतलब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपने 1 plus sin theta से मल्टीप्लाई करके ले लिया. नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि 1 plus sin theta upon 1 plus sin theta is nothing but कैंसिलेशन होने के बाद क्या आपको बचता है? 1 बचता है. तो इससे हमारी इस क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमें फर्क पड़ता है. मैंने पहले ही बताया था हमें फर्क पड़ता है क्योंकि हमारा सम्स जो इजीली वी कैन सिंप्लीफाई दिस सम्स. ओके, तो मैंने पहले ही बताया था कि हम इजीली सम्स को सॉल्व कर सकते हैं. तो एज पर दिस इक्वेशन वी कैन डू एनीथिंग. ओके स्टूडेंट, सो cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा इनटू 1 प्लस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा. 1 प्लस sin थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई किया. सो cos थीटा into 1 plus sin theta, we will going to write like that 1 plus sin theta upon, this is nothing but 1 minus sin theta into 1 plus sin theta, 1 minus sin theta into 1 plus sin theta. So I am going to write like that 1 minus sin theta in another bracket 1 plus sin theta. As you know, 1 minus sin theta 1 plus sin theta is, it will be look like just like algebraic formula a minus b into a plus b. As you know, a minus b into a plus b is nothing but a square minus b square. So I am going to write cos theta in another bracket 1 plus sin theta upon a minus b, a plus b. So a square minus b square. So I am going to write 1 square minus sin square theta. 1 square minus sin square theta. As you know, square of 1 is nothing but 1. So cos theta 1 plus sin theta upon 1 square is 1 minus sin square theta. Okay, then as you know 1 minus sin square theta is given. I am going to continue this side 1 to cosine. So cos theta 1 plus sin theta is there, 1 plus sin theta upon 1 minus sin square theta. As you know the formula of 1 minus sin square theta, identical formula, it will give you cos square theta. So in place of 1 minus sin square theta I am going to write the cos square theta. So cos square theta I am written over here. Can we split this cos square theta in 2 times? Cos theta into cos theta. Are you getting my point? And what will remain in numerator? Cos theta only. Cos theta 1 plus sin theta also. Okay.
This cos theta will be cancelled out. What will remain here? Only 1 plus sin theta, having in their denominator is nothing but cos theta. Now I am going to split this cos theta with 1, this cos theta with sin theta also. Okay, so it will look like 1 upon cos theta plus sin theta upon cos theta. So as you know, 1 upon cos theta it is nothing but sec theta, plus sin theta upon cos theta is nothing but tan theta. So sec theta plus tan theta is the final solution of this particular question of our right hand side. Cos theta upon 1 minus sin theta. Whenever we are going to solve, we are getting the sec theta plus tan theta. This is our left hand side. Please have a look. Sec theta plus tan theta equals to cos theta upon 1 minus sin theta. So after written this thing, once again we have to write this sums also over here, and this question is proved. I hope you can understand this thing. चलिए हम अभी थोड़ा इसका रिवीजन एक बार और ले लेते हैं आपके लिए. देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा है. तो हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सॉल्व किया करते थे. आज इस बार हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने का ट्राई करेंगे. राइट हैंड साइड में क्या है, cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा. सो मैंने cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा ले लिया. अब cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा जिसका हमने कॉन्जुगेट कर लिया. 1 माइनस sin थीटा का कॉन्जुगेट कर क्या होता है 1 प्लस sin थीटा. तो 1 प्लस sin थीटा और इधर भी 1 प्लस sin थीटा से हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया, जिससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता. इस सम्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 प्लस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा इज नथिंग बट 1 होता है अगर आपको कट कैंसिलेशन करेंगे तो. बट हमारे लिए ये सम्स इजी करने वे था, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू डू लाइक दैट. अंडरस्टैंड? सो cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा इनटू 1 प्लस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा. नाउ एज यू नो 1 माइनस sin थीटा अपॉन इनटू 1 प्लस sin थीटा दो अलग-अलग है. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाहे तो आप सर्किल के ब्रैकेट लगा लीजिए यहाँ पे. ओके, सो 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा का आपस में मल्टीप्लिकेशन अगर होता है 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा का मल्टीप्लिकेशन होता है एज पर द अलजेब्रिक फार्मूला a माइनस b इनटू a प्लस b क्या देता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर देता है. सो 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा हमारे लिए देगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा. ओके, cos थीटा इन अदर ब्रैकेट 1 प्लस sin थीटा. देखिए cos थीटा 1 प्लस sin थीटा a माइनस b a प्लस b. सो 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा इन डिनोमिनेटर. सो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हमारा डिनोमिनेटर हो गया. न्यूमरेटर में देख लेते हैं cos थीटा 1 प्लस sin थीटा एज यूजुअल ऐसा हमने कॉपी करके लिया. अंडरस्टैंड? सो नाउ यू शैल गो फर्दर. So cos theta into 1 plus sin theta. As you know, 1 minus sin square theta has the identical formula is nothing but cos square theta. So 1 minus sin in place of 1 minus sin square theta, I am going to write there cos square theta. मतलब 1 minus sin square theta के प्लेस पर हम लोगों ने cos square theta लिख दिया. अब हम इस cos square theta को स्प्लिट कर देंगे, दो टुकड़े में डिवाइड कर देंगे. cos theta into cos theta कर देंगे. देखिए आपके न्यूमरेटर में भी cos theta है और डिनोमिनेटर में भी cos theta है. तो cos theta न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का कैंसिल हो जाएगा. बट डिनोमिनेटर में एक cos theta बचा रहेगा 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा. तो हम इसको स्प्लिट कर लेंगे. हम स्प्लिट करेंगे 1 अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा. तो 1 अपॉन cos थीटा हमें क्या देता है sec थीटा और sin थीटा अपॉन cos थीटा हमें क्या देता है tan थीटा. sec थीटा प्लस tan थीटा which is nothing but our left hand side sums. So after writing this thing we have to write it down once again these questions of this one. Okay, I hope you can understand. और मैं आपको ये बताना चाहूँगा स्प्लिट कैसे करते हैं 1 अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा. उसके लिए मैंने टेक्निक आपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ. जैसे कि आप लोग जानते हैं 3 अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन 5 दिया हुआ है. 3 अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन 5 दिया हुआ है. तो मोस्टली स्टूडेंट को पता है 3 अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन 5. तो डिनोमिनेटर इक्वल है तो सिंगल टाइम लिखते हैं और न्यूमरेटर को डायरेक्टली करते हैं. ओके, न्यूमरेटर को डायरेक्टली करते हैं. 3 प्लस 4 इट विल गिव 7 अपॉन 5. ओके स्टूडेंट, तो जैसा कि ये क्वेश्चन है और ये आपका सॉल्यूशन है. अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा उल्टा करेंगे. आपको ना यहाँ से यहाँ आना सीखना चाहिए पड़ेगा, खासकर इस स्टेप को समझने के लिए. 3 प्लस 4 अपॉन 5 और इसको स्प्लिट करके अपॉन 5 इसके साथ और ये 5 इसके साथ, मतलब इधर से इधर जाने की जगह पे इधर से इधर आना पड़ेगा, जो कि मैंने किया यहाँ पे 1 अपॉन cos प्लस sin अपॉन cos. Okay guys, in the question number 9 there is a question is there. If tan theta plus 1 upon tan theta is 2, if tan theta plus 1 upon tan theta is 2, then we have to show that tan square theta plus 1 upon tan square theta equals to 2. So guys, इस सम्स को हम दूसरे में मेथड से सॉल्व करेंगे. ना इसमें LHS होगा, LHS RHS जैसा पैटर्न होगा ही नहीं. हम डायरेक्टली गिवन मटेरियल पे ही अटैक करने वाले हैं. प्लीज हैव अ लुक ऑन द सॉल्यूशन. सो
tan theta plus 1 upon tan theta is nothing but 2 is given. So I'm going to write this thing once again. Tan theta 1 upon tan theta equal to 2. Okay, completely you have to complete sum you have to write it down. Understand? Then मतलब ये पूरा का पूरा उठा के आपको वैसे का वैसे लिखना है, और इससे मैं ये निकाल के दूंगा आपको, डोंट वरी, बहुत इजी तरीका है. tan theta plus 1 upon tan theta equals to 2. नाउ अब यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, बट यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो मोस्टली बहुत लोग सोचेंगे सर कुछ नहीं, सब पे यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर लगाना है. ऐसा नहीं है, जरा ध्यान से देखो कैसे कर देगा. ओके, सो बाय टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइड का क्या करने वाले हैं, स्क्वायर्स लेने वाले हैं. ओके, बाय टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का अगर स्क्वायर लेंगे तो ये सब कुछ ऐसा हो जाएगा. tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 2, मतलब इसका कंप्लीटली होल स्क्वायर होगा, स्क्वायर ऑफ 2 हो जाएगा. ओके, एज यू नो a plus b the whole square, what will be the result of a plus b the whole square? The result is nothing but a square plus b square plus 2ab. So a plus b the whole square is nothing but a square plus b square plus 2ab. Okay guys, so I'm going to start this one. Tan theta plus 1 upon tan theta is square of this thing. So let us consider that tan theta is nothing but a and 1 upon tan theta is nothing but b. So a plus b the whole square is nothing but a square plus b square plus 2ab, a square plus b square plus 2ab. So here we can solve this thing. Therefore tan square theta plus a के प्लेस पर tan theta था, b की प्लेस पे दिस वन, स्क्वायर ऑफ b इज नथिंग बट 1 अपॉन tan square theta प्लस a square plus b square plus 2ab. 2 into a is tan theta into b is 1 upon tan theta equal to, okay guys, so tan theta plus 1 upon tan theta whole square, I'm going to write like that, tan square theta 1 plus 1 upon tan square theta plus 2ab, 2 into tan theta into 1 upon tan theta, square of 2 is nothing but 4. So tan theta से tan theta अपना कैंसिल हो जाएगा. What will remain here? Tan square theta plus 1 upon tan square theta. 2 1 2, tan theta तो कट गया आपका, यहाँ पे क्या बचा, ओनली 4 बचा है. ओके, therefore tan square theta plus 1 upon tan square theta, ये प्लस 2 है, इक्वल टू साइड क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो 4 minus 2 हो जाएगा. फाइनली आप कर सकते हैं कि tan square theta plus 1 upon tan square theta is nothing but 4 minus 2 क्या होता है, 2. देखिए क्या ये प्रूव करना था, चेक कर लीजिए. So hence prove this solution. tan square theta plus 1 upon tan square theta equals to 2 लाना था, जो कि मैंने यहाँ पे ला दिया. tan square theta plus 1 upon tan square theta equals to 2. So guys, I hope you can understand. Please take a screenshot of this thing once again. Student, once again I am going to take the revision of question number 9. In question number 9, there is a given if tan theta plus 1 upon tan theta is equals to 2, then we have to show that tan square theta plus 1 upon tan square theta is 2. Okay guys, so इस सब को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि LHS और RHS लेके किसी दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे. तो मेथड क्या है, कुछ इस तरह से, tan theta plus 1 upon tan theta equals to 2. So by taking squares on both sides, so I'm going to take the squares of on both sides. As you know the square square on both sides, a plus b the whole square is nothing but a square plus b square plus 2ab होता है. उस मेथड को हम फॉलो करेंगे. तो tan theta plus 1 upon tan theta का होल स्क्वायर हमने ले लिया is equals to square of 2, मतलब ये पूरे का स्क्वायर और स्क्वायर ऑफ 2. So guys, this tan theta is nothing but a, 1 upon tan theta is nothing but b. So a plus b the whole square equals to a square plus b square plus 2ab होता है. उसका इस्तेमाल करते हुए, so tan square theta plus 1 upon tan square theta plus 2ab के हिसाब से 2 into tan theta into 1 upon tan theta, and square of 2 will be 4. Square of 2 will be 4. So tan square theta plus 1 upon tan square theta, इस tan theta कट गया आपका, 2 into 1 2 बचा equals to 4. ये प्लस 2 क्या होगा, माइनस. tan square theta
plus 1 upon tan square theta is nothing but 4 minus 2 is 2, which is the required solution of the given question. So आपको ये सम अच्छे ढंग से समझ गया होगा. Thank you very much. Question number 10. Tan A upon 1 plus tan square A having the square plus cot A upon 1 plus cot square A having the square. This is our left hand side. In the left hand side this is the given. Then we have to solve this left hand side and we have to find out the value of this thing equals to the sin A into cos A. मतलब ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है और करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हमें राइट हैंड साइड लाना है, जो कि राइट हैंड साइड में हमारा टारगेट क्या है, sin A into cos A. तो जैसे कि मैंने बताया था आपको लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करने जाना है. तो लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट किया हमने tan A upon 1 plus tan square A having the square plus cot A upon 1 plus cot square A having the square. Okay guys, so as you know the identical formula 1 plus tan square A, 1 plus tan square A is nothing but sec square A, as well as 1 plus cot square A is nothing but cosec square A. So we are using that formula tan A upon sec square A having the square. As you know 1 plus tan square is nothing but sec square A and is having the square. Okay, plus cot A, 1 plus cot square A also having the square. 1 plus cot square A मैंने आपको पहले बता दिया था cosec square होता है, cosec square A also having the square. Okay guys, so जैसे कि आप लोग जानते हैं ये स्क्वायर अभी इंटीग्रेट करने जा रहा है. तो न्यूमरेटर में क्या है tan A, डिनोमिनेटर में क्या है स्क्वायर इंटीग्रेट करेगा sec to the power 4A plus cot A स्क्वायर इंटीग्रेट करेगा cosec to the power 4A, tan A upon sec to the power 4A plus cot A cosec to the power 4A. As you know 1 plus tan स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूले में sec स्क्वायर A, 1 plus cot स्क्वायर क्या देता है आइडेंटिकल फॉर्मूले का cosec स्क्वायर A, और इसके ऊपर स्क्वायर था तो इधर भी स्क्वायर आएगा, इसके ऊपर स्क्वायर था तो इधर भी स्क्वायर आएगा. स्क्वायर इनटू स्क्वायर इनटू 2 into the 4 स्क्वायर का स्क्वायर में मल्टीप्लाई तो इसके having the power sec to the power 4A as well as cosec to the power 4A. अपना न्यूमरेटर वैसे as it is हम लोग राइटिंग डाउन कर रहे हैं. ओके, नाउ as you know tan A upon sec to the power 4A, तो इसको ना आपको थोड़ा कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्या, tan A into 1 upon sec to the power 4A. ओके, मतलब tan A upon sec to the power 4A का मैंने थोड़ा ऐसा लिखा 1 upon sec to the power 4A, अंडरस्टैंड, प्लस cot A को ऐसा कर रहने दो into cosec to the power 4A को अपन ऐसे लिखेंगे 1 upon cosec having the power 4A, cosec A having the power 4. ओके गाइस, सो tan A ऐसे रहेगा हमारा into 1 upon sec to the power 4A plus cot A into 1 upon cosec to the power 4A. tan A का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है. tan थीटा इज नथिंग बट sin थीटा अपॉन cos थीटा, बट यहाँ पे tan A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा sin A अपॉन cos A. तो मैंने यहाँ पे tan A के प्लेस पे sin A अपॉन cos A अप्लाई कर दिया into as you know 1 upon sec theta is nothing but cos theta. So 1 upon sec A will be cos A, 1 upon sec will be cos A, but sec is having the power 4, so I am going to write over here cos A, but 1 upon sec A is nothing but cos A, so I am going to write cos having power 4A, cos A to the power 4 plus same as it is for this thing also. cot A का फॉर्मूला आपको पता है, cot A का क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, sin थीटा अपॉन में रहेगा cos थीटा ऊपर न्यूमरेटर में रहेगा, सो cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो बट यहाँ पे cot A था, so we will going to write cos A upon sin A. ओके स्टूडेंट, प्लस 1 upon cosec to the power 4A को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 upon cosec क्या होता है sin होता है, so sin A लिखा but is having the power 4, so we have to write this thing. Okay students, so cos A upon sin A into sin to the power 4A. Okay student, now sin A upon cos A into cos to the power 4A है, अब cos to the power 4A plus cos A upon sin A into sin to the power 4A. so मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ आपका, इक्वल का साइन लगा दिया, sin A upon cos A एक बार दोबारा अच्छे से लिख देता हूँ मैं sin A upon cos A into cos to the power 4A. तो cos to the power 4A is nothing but
you can write it down cos A into cos cube A। क्या हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं? cos to the 4 और 4A तो हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं cos A into cos to the cube A, as well as for this thing also cos A upon sin A into sin to the power 4A दिया था, इसको हम स्प्लिट करेंगे इस वाले को। सो cos A ऐसे ही है इंटू और cos A अपॉन sin A इंटू इस sin टू द पावर 4 को मैं स्प्लिट करने जा रहा हूँ sin A इंटू sin to the power 3। Okay, once again I am improve myself। थोड़ा स्पेस इशू है, कोई बात नहीं। sin A अपॉन cos A था नीचे, बरोबर, इंटू cos टू द पावर 4 था तो उसको मैंने स्प्लिट कैसे किया था cos A इंटू cos टू द पावर 3, अंडरस्टैंड, प्लस cos A अपॉन sin A था, cos A अपॉन sin A था, उसको मैंने कैसे मैनेज किया था इंटू sin A इंटू sin टू द पावर 3A। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक। नाउ sin A अपॉन cos A जो कि वैल्यू था tan A का, और यहाँ cos टू द पावर 4A था तो जिसको मैंने cos A इंटू cos क्यूब A किया, ये cot A के प्लेस में मैंने cos A अपॉन sin A किया, और यहाँ sin टू द पावर 4A था जिसको मैंने sin A इंटू sin क्यूब A किया। ओके स्टूडेंट, नाउ ये मैंने आपके लिए किया जानबूझ के, नहीं तो मैं डायरेक्टली कैंसिलेशन कर सकता था, बट आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए cos टू द पावर 4A को मैंने cos A इंटू cos क्यूब A किया, तो उसी तरह sin टू द पावर 4A था उसको sin इंटू sin क्यूब किया। अब इसका बेनिफिट क्या होगा आपको ध्यान से देखो, ये cos A कट गया, ये sin A कट गया, खत्म। डिनोमिनेटर में देखिए सब गायब होगा, अभी ओनली न्यूमरेटर बचा है। न्यूमरेटर में क्या है आपके पास sin A इंटू cos क्यूब A प्लस cos A इंटू sin क्यूब A। तो गाइस ध्यान से देखेंगे sin A इंटू cos क्यूब A प्लस cos A इंटू sin क्यूब A। अब इसमें ना थोड़ा टेक्निक की तरह फॉलो करना है। जब देखो क्या है, sin A इसके पास है, sin A इसके पास है, बट इसके पास sin है ओनली वन sin है, बट इसके पास sin क्यूब A है, इसके पास cos क्यूब A है, बट इसके पास सिंगल cos है। एक काम करते हैं, इसमें से sin A और इसमें से sin A चुरा लेते हैं, इसमें से cos A और इसमें से cos A चुरा लेते हैं, चुराने का मतलब कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचा रहेगा वो सेपरेट ब्रैकेट में लिख लेते हैं। जरा ट्राई करते हैं, जब हैव अ लुक प्रॉपर्ली। सो sin A इधर भी है इधर भी, दोनों में से कॉमन कर लिया। ओके, इसके पास cos A था, इसके पास भी cos A, एक cos A मैंने को ले लिया। अब जब चेक कीजिए sin A निकाल लिया, cos A निकाल लिया, क्या बचा ओनली cos स्क्वायर A बचा, प्लस इसमें से भी cos और इसमें से एक sin A निकाल लेते, यहाँ पे क्या बचा ओनली sin स्क्वायर A बचेगा। सो sin A into cos A लिखा हमने वैसे, but as you know cos square A plus sin square A is having the identical formula which is given the 1, cos square theta plus sin square theta is 1, so cos square A plus sin square A प्लस क्या आएगा into 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो कुछ नहीं वैसे ही रहेगा। so sin A into cos A, क्या ये प्रूव करना था, जब चेक कर लीजिए, देखिए ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। ओके, आफ्टर दैट you will write it down the whole question, so I hope you can understand this solution of this thing। so once again I am going to repeat this thing, क्वेश्चन नंबर 10 को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं आप लोग के लिए। tan A upon 1 plus tan square A having the square plus cot A upon 1 plus cot square A the having the square, मतलब इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इक्वल टू sin A into cos A लाना था आप लोगों को। ओके, सो एज यू नो इस सम्स के मैंने LHS को यहाँ पे कॉपी कर लिया, और इस हमारा टारगेट क्या है, इस LHS को इस तरह से सॉल्व करो कि मैं मेरा RHS जो कि sin A into cos A है वो मैं ला के दूँ आपको। ओके, सो 1 plus tan square A का फॉर्मूला होता है, आइडेंटिकल फॉर्मूला होता है, 1 plus tan square A क्या होता है sec square A as well as 1 plus cot square A having the identical formula cosec square A। so I am going to apply that formula
tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर के प्लस पे sec स्क्वायर आएगा और उसके ऊपर स्क्वायर आएगा प्लस 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 1 प्लस cot स्क्वायर है कि उसके ऊपर स्क्वायर, तो 1 प्लस cot स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर है और उसके ऊपर जाके स्क्वायर गिरेगा। अब ये स्क्वायर स्क्वायर एंट्री मारेगा तो 2 टू द 4 2 टू द 4 so tan a upon sec to the power 4a plus cot a upon cos sec to the power 4a। I hope you understand this thing। अब यहाँ पे ध्यान दो ना, sec to the power 4a है, इसको मैं थोड़ा साइड में खसका के लेता हूँ, थोड़ा साइड में एडजस्ट करता हूँ। tan a into 1 upon sec to the power 4a लिख सकते हैं, वेरी गुड। cot a upon cos sec to the power 4 को मैंने cos sec को उधर सरका दिया into 1 upon cos sec to the power 4a लिख सकते हैं। यहाँ से समझ में आ गया आपको। जैसे कि हम जानते हैं कि 1 upon sec क्या देता है, cos देता है, 1 अपॉन cos क्या देता है, साइन देता है, बट उसका जो पावर है वो पावर के साथ ऊपर जाएगा। ओके, सो 1 अपॉन sec के प्लेस पे मैंने cos लगाया, 1 अपॉन cos के प्लेस पे साइन लगाया, एज वेल एज cot a को भी फॉर्मूला अप्लाई किया। cot a का फॉर्मूला क्या होता है, cos a अपॉन sin a, सेम केस फॉर tan a आल्सो, sin a अपॉन cos a। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा। अब आगे जा सकते हैं। sin a अपॉन cos a इंटू cos टू द पावर 4 है, भूलना नहीं यार, प्लस cos a अपॉन sin a इंटू sin टू द पावर 4 है, याद रखना, भूलना नहीं। ठीक है, ये cos टू द पावर 4 है ना, इसको मैंने स्प्लिट करूंगा, एक बार सिंगल टाइम cos a लिखूंगा इंटू cos क्यूब a लिखूंगा। सेम sin टू द पावर 4a को मैं sin a इंटू sin टू द पावर 3 मतलब sin क्यूब a लिखने वाला हूँ। ओके, प्लीज हैव अ लुक दिस हियर। sin अपॉन cos a इंटू उस cos टू द पावर 4 को मैंने तोड़ा, cos a इंटू cos क्यूब a लिखा, प्लस cos a अपॉन sin a इंटू उस sin टू द पावर 4 को तोड़ा मैंने, sin a इंटू sin क्यूब a। जरा चेक करो, आपके डिनोमिनेटर में sin a है और न्यूमरेटर में भी sin a, कैंसिल आउट हो गया। इधर देखो cos a cos को कैंसिल कर देगा, व्हाट विल रिमेन ओवर हियर डियर स्टूडेंट, sin a into cos क्यूब a प्लस cos a into sin क्यूब a। ओके स्टूडेंट, जरा ध्यान दो, यहाँ तक तो आप समझ में आ गया रहेगा आप लोगों को, बट यहाँ पे एक sin a है, बट यहाँ पे sin क्यूब a है, यहाँ पे cos क्यूब a है, बट वहाँ पे सिंगल cos a है। तो क्या नहीं कर सकते हम ये करेंगे कि sin a cos a दोनों के पास है, उसको कॉमन कर लेते हैं, sin a और cos a कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, sin a cos को चुरा लिया, sin a और cos इसके पास में दोनों से चुरा लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, कुछ नहीं, cos स्क्वायर है तो बचेगा ही बचेगा, प्लस sin क्यूब में से एक sin a निकाले तो sin स्क्वायर बचेगा, जो कि एक आइडेंटिकल फॉर्मूला देता है। कौन सा आइडेंटिकल फॉर्मूला देता है, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर है, क्या देता है 1। सो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर हैविंग द आइडेंटिकल फॉर्मूला 1, सो आई एम गोइंग टू राइट दिस फॉर्मूला द वैल्यू, सो इट विल इज नथिंग बट 1। So sin a into cos a into 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क नहीं पड़ता, sin into cos a which is our requirement of right hand side। तो मैंने ये सब सॉल्व कर दिया। अब ये सब सॉल्व होने के बाद इस क्वेश्चन को वापस नीचे लिखना है and prove। I hope you can understand this thing। Thank you। Now we are going to start the question number 11। In question number 11 there is a question is given sec to the power 4a minus in bracket 1 minus sin to the power 4a minus 2 tan square a equals to 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। अब इस क्वेश्चन नंबर 11 में हम इस एलएचएस को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके अपना टारगेट क्या है कि अपना आंसर ओनली 1 आना चाहिए, जो कि हमारा रिक्वायरमेंट है राइट हैंड साइड का। सो लेफ्ट हैंड साइड को हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ये जो था वापस कॉपी कर लेते हैं। थोड़ा टिपिकल समय थोड़ा ध्यान देना, फॉर्मूला याद रखना चाहिए। ओके, sec टू द पावर 4a 1 माइनस sin टू द पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड था। इस लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कर सकते हैं आप, ये माइनस 2 tan स्क्वायर है वैसे ही है, sec टू द पावर 4 है वैसे बाहर पड़ा हुआ है और इन ब्रैकेट में 1 माइनस sin टू द पावर 4 दिख रहा है आप लोग। क्या करते हैं, ये sec टू द पावर 4 है ना, इसको ब्रैकेट के अंदर एंट्री मारने को बोलते हैं। चल बाबा तू अंदर आ जा, तो इसका इसमें अगर हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है, चेक कर लो, sec टू द पावर 4a into 1 ये देगा हमारे को, बट sec टू द पावर 4a का मल्टीप्लाई इसमें होने जा रहा है, ध्यान दो स्टूडेंट, sin टू द पावर 4a पहले से था into इस sec टू द पावर 4a। ओके, व्हाट विल रिमेन ओवर हियर, माइनस 2 tan स्क्वायर a। फिर से रिपीट कर देता हूं, जरा देख लो, sec टू द पावर 4 है जो कि ब्रैकेट के बाहर था और ब्रैकेट के अंदर एंट्री करें तो 1 का इसको मल्टीप्लाई होगा तो sec टू द पावर 4 है एज इट इज, माइनस sin टू द पावर 4 है इनटू sec टू द पावर 4 है हो जाएगा और माइनस 2 tan स्क्वायर है, वैसे को वैसे मैंने कॉपी कर लिया। यहां से समझ में आ गया आप लोग को। ओके स्टूडेंट, जब दिमाग लगाओ, ये sec टू द पावर 4 है कुछ और नहीं, sec स्क्वायर है का स्क्वायर है, मतलब sec स्क्वायर हैविंग द स्क्वायर
इज नथिंग बट sec टू द पावर 4n होता है। सो sec स्क्वायर हैविंग द स्क्वायर। इधर तक का हो गया। अब इधर थोड़ा दिमाग लगाओ, sin टू द पावर 4a इंटू sec टू द पावर 4n है बस ना। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, sin टू द पावर 4 वैसे रहेगा, बट यू नो sec a इज नथिंग बट 1 अपॉन cos होता है। sec बोले तो 1 अपॉन cos होता है। नाउ आई एम गोइंग टू राइट 1 अपॉन cos a having the power 4, so we have to write it down 1 upon cos to the power 4a minus 2 tan square a, ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा। ओके, यहाँ पे समझ में आ गया। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं आइडेंटिकल फॉर्मूला, कौन सा आइडेंटिकल फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं हम लोग, 1 प्लस tan स्क्वायर a इज नथिंग बट sec स्क्वायर a। सो जैसे कि आप लोग जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर होता है, बट अब sec स्क्वायर के प्लेस पे मैं 1 प्लस tan स्क्वायर लगाने जा रहा हूँ, मतलब आंसर के प्लेस पे क्वेश्चन लगाऊंगा 1 प्लस tan स्क्वायर a। आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर, ओके प्लीज हैव अ लुक, 1 प्लस tan स्क्वायर a, sec स्क्वायर के प्लेस में लगा बट इज हैविंग द स्क्वायर, तो इसके टकले पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ओके, माइनस इधर का प्रोग्राम हो गया, इधर ध्यान दो अच्छे से, sin टू द पावर 4a इनटू 1 अपॉन cos टू द पावर 4a, तो ये cos टू द पावर 4a अपॉन में आ जाएगा। सो sin टू द पावर 4a अपॉन cos टू द पावर 4a हो गया। ओके, और ये वैसे कंटिन्यू रहेगा, उसको टेंशन नहीं लेगा, बिंदास रहेगा, 2 tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a। सो इधर से समझ में आ गया। बट यू नो द फॉर्मूला a प्लस b द होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। ओके, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे लगाने जाएंगे, स्क्वायर ऑफ 1 इज नथिंग बट 1, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस, चाहे तो लिख देता हूँ इस बार, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a हैविंग दी स्क्वायर। ओके, a प्लस b द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, कितने का इधर सॉल्यूशन किया फिर इसके ऊपर स्क्वायर का, माइनस साइन अपॉन कॉस क्या देता है, tan देता है, बट इसका पावर क्या है 4, तो ये tan तो देगा बट tan टू द पावर 4a देगा, tan टू द पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a मिला। इधर पे समझ में आ गया आप लोगों को ना। अब स्क्वायर इंट्री करेगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ये बहुत काम का स्क्वायर नंबर है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और यही बचेगा, बाकी सब गायब होने वाला है कुछ समय के बाद, देखो चमत्कार होने वाला है। स्क्वायर ऑफ 1 इज 1 प्लस 2 इंटू 1, 2 1 जा 2, और दिस वन प्लस 2 tan स्क्वायर a हो जाएगा, बरोबर 2 tan स्क्वायर a प्लस स्क्वायर इंट्री मानने जा रहा है अभी, tan टू द पावर 4a। ओके, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर a, स्क्वायर इंट्री मारेगा प्लस tan टू द पावर 4a माइनस tan टू द पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a, बरोबर कितने बचा रह गया। जरा ध्यान से देखो, tan टू द पावर 4a यहाँ पे भी है, tan टू द पावर 4a यहाँ पे भी है, बट ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो कटे गए, खड़े बोल सकते हैं, कट गया। सेम चीज माइनस 2 tan स्क्वायर है, जो कि हम स्टार्टिंग से उसको फॉलो करके लेके आए थे यहाँ तक, माइनस 2 tan स्क्वायर है, ये माइनस में है, काश कहीं भी अगर प्लस में होगा वो भी डायरेक्टली कट जाएगा, हाँ कटेगा ना, देखो ना यहाँ पे प्लस 2 tan स्क्वायर है, प्लस 2 tan स्क्वायर है माइनस 2 tan स्क्वायर है, खड़े कट गया, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, ओनली 1 बचा, चेक कर लो, अच्छा लगेगा, सब कट गया, एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, आवर आंसर इज 1 which is the our right hand side. I hope you can understand this thing. After reading this thing, you have directly done the whole question, you know the solution. Thank you. Okay guys, this is the last question of practice set 6.1, which is nothing but the question number 12. That 12 is having the solution like that, tan theta upon sec theta minus 1 equal to, we have to prove that tan theta plus sec theta plus 1 upon tan theta plus sec theta minus 1. क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने का एक डिफरेंट मेथड है, वो मेथड मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ। एज यू नो द आइडेंटिकल फॉर्मूला, व्हाट इज द व्हिच वन आइडेंटिकल फॉर्मूला, 1 plus tan स्क्वायर थीटा इज व्हाट, sec स्क्वायर थीटा, वी विल गोइंग टू यूज दैट फॉर्मूला, बट उसमें उसका वे थोड़ा चेंज रहेगा। अभी इस बार क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है, इससे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, प्लीज कंसंट्रेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन एज इट इज मैंने रख दिया, अब मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। सॉल्यूशन की फर्स्ट लाइन मैंने क्या लिखा, वी नो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज नथिंग बट tan स्क्वायर थीटा, सिंस
sec square theta minus 1 is nothing but tan square theta, but sec square theta minus 1 is nothing but is equal to tan square theta हमारे सामने होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे जरा चेक करो, ये 1 कुछ और नहीं 1 का स्क्वायर है, ये 1 कुछ और नहीं 1 का स्क्वायर है, और इसमें आप फॉर्मूला याद रख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाने जा रहा हूँ मैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या देता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी देता है। तो उस हिसाब से सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1 इसका सॉल्यूशन निकला। यहाँ तक समझ में आ गया। और tan स्क्वायर थीटा को मैं स्प्लिट करने जा रहा हूँ, tan थीटा इनटू tan थीटा 2 टाइम्स लिखा, tan थीटा इनटू 2 स्क्वायर था, इसको 2 बार कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एज पर द सिचुएशन इसमें कहा एक टर्म यहाँ से इक्वल को उस साइड लेके जाने का और वहाँ से एक टर्म इस साइड लेके आने का, बस इतना याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन का कोई भी टर्म इक्वल को उस साइड जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, उधर का भी मल्टीप्लिकेशन कोई टर्म्स अगर इक्वल के साइड आएगा तो डिवीजन हो जाएगा। सेम ये फंडा दिमाग में याद रखो, थोड़ा हटके ये क्वेश्चन है, सो प्लीज प्रॉपर्ली कॉन्सेंट्रेट करके लो। सो सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 इनटू tan थीटा था। मैंने क्या किया, सेक थीटा प्लस 1 एक सिंगल वाला टर्म यहाँ पे रखा और सेक थीटा माइनस 1 यहाँ से मैंने यहाँ से भगा दिया, मतलब जाओ तुम यहाँ से हटो, ये यहाँ से हट के उस साइड जब जाएगा तो tan थीटा के पैरों के नीचे गिर पड़ेगा, मतलब तो डिनोमिनेटर में आ गया। ओके, सेक थीटा प्लस 1 इधर था और सेक थीटा माइनस 1 यहाँ से मैंने भगा दिया, यहाँ से भगा दिया तो इक्वल टू साइड जाते वक्त मल्टीप्लिकेशन का तुरंत डिवीजन में हो जाएगा, तो tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझा। उसी तरह यहाँ से मैंने एक tan थीटा मांग लिया है, इधर आ जाओ, बट यहाँ से मल्टीप्लिकेशन का वाला tan थीटा यहाँ पे आएगा तो सेक थीटा प्लस 1 के पैरों में आके गिर पड़ेगा। बोलो यहाँ तक समझ में आएगा आप लोग को। सो सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में tan थीटा इक्वल टू tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1, ये सिचुएशन हमने इस फॉर्मूले से पाया है। यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब मैं आपको कुछ पुरानी बातें, कुछ पुरानी यादें ताज़ा करवाना चाहूँगा। याद करो 9th स्टैंडर्ड में अलजेब्रा में एक चैप्टर था, उस चैप्टर में आपको थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो मैडम ने या सर ने किसी ने पढ़ाया होगा, उस प्रोफेसर ने बताया रहेगा कि थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो क्या होता है। मैं उस लिस्ट का थोड़ा सा छोटा सा तो बता देना चाहता हूँ क्या है, प्लीज हैव अ लुक दिस थिंग। याद करो 9th स्टैंडर्ड में एक ऐसा सम्स हुआ करता था, a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d इक्वल टू e अपॉन f इक्वल टू g अपॉन h, बहुत लंबा वाला सॉल्यूशन होता है। याद आ रहा है कि नहीं, कंपोनेंडो डिविडेंडो कंपोनेंडो इन्वर्टेंडो अल्टरनेंडो, ये सब के बाद एक लास्ट में एक इसके बाद एक नेक्स्ट एक्सरसाइज हुआ था अलजेब्रा में, उसमें पढ़ाया गया थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो बहुत ईजी है। मैंने मेरे स्टूडेंट्स लोगों को क्या बताया आपको याद रहेगा स्टूडेंट्स, जो काम ऊपर वाले के साथ करना वही काम नीचे वाले के साथ करना। ऊपर अगर मल्टीप्लाई किया तो नीचे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर अगर तुमने प्लस किया तो नीचे में प्लस करना पड़ेगा, ऊपर माइनस किया तो नीचे माइनस करना पड़ेगा। याद करो ऐसा सम प्रॉब्लम सेट में हुआ करता था, प्रैक्टिस सेट में नहीं था। तो a अपॉन b इक्वल्स टू c अपॉन d इक्वल्स टू e अपॉन f इज इक्वल टू g अपॉन h ऐसे दिया हुआ है, घबराने की कोई बात नहीं। बाय यूजिंग थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो क्या सिखाया था मैंने, मान लो a अपॉन b है तो यहाँ पे मान लो आपने m से मल्टीप्लाई किया तो ये तुम्हारा mc अपॉन md हो जाएगा, मतलब जो ऊपर किया वही नीचे करना पड़ेगा। अगर मान लो आपने प्लस किया तो ऊपर प्लस किया तो नीचे भी प्लस करना पड़ेगा। सेम वही फंडा यूज होने वाला है 9th स्टैंडर्ड का थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो का। बाकी लोग को मैं और अच्छे ढंग से मैं बता दूंगा जब आप लोग आपकी हमारी मुलाकात होगी। ओके, तो थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो का यही रूल होता है, ऊपर अगर मल्टीप्लाई किया तो नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर अगर प्लस किया तो नीचे में प्लस करेंगे, ऊपर अगर माइनस किया तो नीचे में माइनस करेंगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब उसके अकॉर्डिंग्स मैं ये सम्स लेने जा रहा हूँ, प्लीज हैव अ लुक दिस थिंग। बाय यूजिंग थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, जैसा कि आप लोग यहाँ तक क्लियर हो चुका था, सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 tan थीटा इनटू tan थीटा, अच्छा हो गया, यहाँ समझ में आ जाता। बाय यूजिंग थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो में क्या होगा, हमको ईच रेशियो मिलता है, वो ईच रेशियो में क्या आएगा, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 था। तो मैंने क्या किया, ऊपर है ना प्लस करने का काम किया, ऊपर अगर प्लस किया तो नीचे भी प्लस करना पड़ेगा, याद है ना। तो सेक थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा किया, देखो ये मैंने सेक थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा किया, और ऊपर प्लस किया तो नीचे भी प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि बाय यूजिंग थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो मैंने अभी बताया था कुछ समय पहले। तो tan थीटा वैसे था प्लस सेक थीटा माइनस 1, देखो tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, मतलब ऊपर प्लस किया तो कुछ उसका सीन शॉर्ट ऐसा हो जाएगा, सेक थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा। ओके, नीचे प्लस करेंगे तो tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करके ले लेते हैं। सेक थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा था, बट हमारे डिमांड में क्या था, tan थीटा पहले आम होता था तो अपन tan थीटा आगे ले लिया, tan थीटा प्लस के साथ तो प्लस tan थीटा आगे लिया, tan थीटा सेक थीटा को सरका लिया, tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 एडजस्ट कर लिया, और नीचे का जरूरत देखो tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 एज इट इज। तो हमने इस सम्स को इस तरह से सॉल्व किया कि हमें ये हमारा सॉल्यूशन मिल गया। ओके गाइस, अब देख सकते हैं tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1
जो कि यहाँ पे tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1, ये मेरा मान लीजिए स्टेटमेंट नंबर 1 है, और इसको इन दोनों को मतलब इन दोनों को सॉल्व किया, जो कि यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2 मिला। फ्रॉम 1 and 2 देख सकते हो tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इसका, और स्टेटमेंट नंबर 2 में इसका सॉल्यूशन ये मिला। तो फ्रॉम 1 and 2 we can write it down tan theta upon sec theta minus 1 equal to this thing tan theta plus sec theta plus 1 upon tan theta plus sec theta minus 1, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। Hence proved। I hope you can understand this thing. This is your last question of practice set 6.1। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट लेक्चर में अपने प्रॉब्लम सेट 6 के नॉन वर्डिंग क्वेश्चन लेने जाऊँगा, जो कि इसके जैसे ही हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके लिए आपको अच्छे ढंग से प्रिपेयर होना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा? फॉर्मूला ऐड करना पड़ेगा। प्रैक्टिस सेट 6.1 के मैंने जो वीडियोस बनाए उसको अच्छे ढंग से 2-3 बार देखो, अच्छे ढंग से उसके नोट्स प्रिपेयर करो। जो होमवर्क देता हूँ मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में, उसको प्रॉपरली सॉल्व करो। अगर कुछ क्वेरी है तो व्हाट्सएप के ग्रुप में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैं ये नहीं कहूँगा यू एंजॉय दिस वीडियो, क्योंकि एंजॉय का वाला वीडियो नहीं है, स्टडी वाला वीडियो है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन press bell icon without forget, as well as you can watch my next video. So like, share, subscribe करना मत भूलना। Thank you very much. I hope you can understand this thing. So once again wish you to healthy lifestyle. Thank you very much. नमस्कार।